friends already. Good to see all of you. If possible, before I begin my screen share, जो भी अपना वीडियो ऑन करके हेलो कह सकते हैं कह दीजिए. हाय पलक, नमस्ते रुमित सर, हाय आकाश, महेश जी, कमल, नमस्ते विनु जी, एंड आराधना, यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम. एंड हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज फ्रेंड्स, उसका टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही प्यारा है, ऑन शेयरिंग योर जॉय विद अदर्स. And I'm extremely delighted to have my husband here in this session today, this morning. Probably the first time he's attending one of TBF's readings. It's actually, we are at a long distance right now, and I felt this would be a wonderful way to connect. So, welcome Aditya ji. So happy to have you here today. Friends, just let me know if you can see my screen. Of late, I discovered that my screen share at our sessions was quite compromised. So just thank you, sir. So just let me know if you're able to see the screen. Is it visible? Yes? Okay. Thank you. Thank you, friends. Wonderful. So our first chapter, friends, is titled On Sharing Your Joy with Others. We'll be doing 2 chapters today. Letter number 61 and 62. Okay. So the first is a very beautiful theme, sharing your joy with others. And I'd like to begin by giving you a hypothetical situation. Consider that you have you have accomplished something very beautiful in your life, okay? Something that's extremely coveted for you. कोई एक ऐसी चीज जिसको आप बहुत समय से चाह रहे थे और वो फाइनली आपको मिल गई. एंड आप अकेले बैठे हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका विचार आपके भीतर आता है कि मैं तुरंत उनको रीच आउट करूं या उनके पास जाके मिलूं या उन्हें कॉल करूं और मैं शेयर करूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. और आप अपना सुख जो है, ओशो कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर में कि हमारे भीतर प्रेम या सुख या पॉजिटिविटी कई बार इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए, like clouds, it's not able to carry the water inside it anymore, then it has to rain. तो हमारे जीवन में जब कभी सुख या कोई एक अकम्प्लिशमेंट इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल या मीनिंगफुल हो that we cannot carry it with us only alone, we need somebody else, we need a loved one to share that with. And it's not a generic announcement. मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे जाकर लाउड स्पीकर में अनाउंस करके नेबर्स को बताऊं कि फ्रेंड्स मुझे मेरे साथ ये अच्छा हुआ है या मेरा गाना रिलीज हुआ है फॉर एग्जांपल. दैट माइट नॉट मैटर for us as much as sharing it with someone that you deeply connect with or love. Hey dear, I just worked on this, please check this out, you might enjoy. And what you share or how you acknowledge, that matters to me. So this was a small premise before we begin the letter on sharing your joy with others, letter number 61. So in today's disconnected and individualistic world, it's very easy to forget that हम social creatures हैं. ह्यूमंस की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड होती है कि हम सोशली कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ में. एंड ऑक्सीटोसिन एक ऐसा केमिकल है जो सीक्रेट होता है मोस्टली तभी जब हम किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट होते हैं. बाकी डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सब हमें योगा, एक्सरसाइजेस, इन सब से मिल जाते हैं. ऑक्सीटोसिन इज समथिंग जो कि ह्यूमनली कनेक्टेड होता है. सो व्हेन यू आर सिटिंग विद समबडी, शेयरिंग अ कॉन्वर्सेशन, टॉकिंग, हैविंग अ सोशल कॉन्टैक्ट, वो आपको ऑक्सीटोसिन देता है और वो एक अलग लेवल ऑफ सुख होता है. But somehow, our modern day lifestyles force us to be more individualistic. That is a realization. It's not a criticism, it's a true realization. It seems like many of us are too busy to spend time building deep, caring, and solid relationship with others. Again, quoting Robin Sharma, most of us are extremely busy being busy. We don't realize what we are busy on, but वो busy होना हमें काफी glamorous लगता है. To me, it's more important to have deep conversation, deep relationships than a nice house, car, vacation, etc.
For what use is anything in the world without the ability to share it with the people you love? Let's not deny it is wonderful to have a nice house. It's incredibly amazing to drive in a good, solid, safe car. It's great to have a nice vacation and a bank balance that enables you to do all of that. But it's more enriching to do it with a loved one than solo, is what I feel. Okay. सो यहाँ पर दिस वर्सेस दैट अप्रोच नहीं कर रहे, हम कर रहे दिस बिकम्स मोर ब्यूटिफुल व्हेन दैट इज अवेलेबल विद अस. Okay, I would like to quote my brother. At one time he used to write a lot of poetry and he stated, love does not give us bread and butter. I quote, love doesn't give bread and butter, but without love, even bread and butter does not taste nice. प्यार से रोटी नहीं मिलती है, लेकिन प्यार अगर है, प्रेम अगर है, लव्ड वंस हैं साथ में, तो रोटी का स्वाद थोड़ा सा एनरिच हो जाता है, एनहांस हो जाता है, सूखी रोटी का भी. So, for what is the use in this world without the ability to share it with people you love? Yesterday, I watched a very small footage. I'm not sure if many of you have heard about the Big Bang Theory. It was a sitcom. It was a series that was, yes, thank you. So, Big Bang Theory, mein, there's this very eccentric character called Sheldon Cooper. He is a genius. His IQ is very superior. No tests are developed that can measure that level of IQ. So, eventually, towards the finale, it's shown that Sheldon and his wife, they do receive a Nobel Prize in that series for some of their accomplishment. And Sheldon, throughout the series, is shown to be very, very self-centric. He always, brings the topic to himself, always, makes everybody acknowledge what he has done. That kind of character he is. But it was so incredible to see that in the finale, when actually he was about to give his acceptance speech, he suddenly looked at his friends and he kind of had a moment where he realized, I would not have been able to do it without them. And this eccentric character on the stage in the Nobel Prize panel, he acknowledges each one of them, he names them, and he specifically states, I would not have been able to do it without these people, and also his parents, about whom he had a lot of complaints earlier, and his wife. So कोई भी चीज लाइफ में ज्यादा सुंदर बन जाती है यदि कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके साथ हो जिसके साथ आप उसे शेयर कर सकें, राइट? सो सेनेका, someone who appreciated the importance of friendship once said that there's no enjoying the possession of anything valuable unless one has someone to share it with. हम इसको काफी ना misinterpret करते हैं. Okay, when I was small, I remember in the 90s there was this movie दिल तो पागल है, and उस genre की बहुत सारी movies थी. ठीक है. And वहाँ and we were kids actually, we were probably barely 9 or 10. And वहाँ पर मूवी में ये दिखाया जाता था constantly, it was fed constantly, someone somewhere is there for you. So unless you do not meet that someone, then you are incomplete, that narrative. And all of our teenage, imagine children who have grown up watching that kind of movies, Karan Johar movies and all of that, would have felt a kind of lack कि यार मैं sufficient नहीं हूँ, I definitely need someone in my life. उसके बाद ही मैं complete feel कर सकता हूँ. And that someone has to be a romantic someone. That narrative has been so deep. I'd like to add here that it does not only have to be a romantic someone in your life that you share good times with. It has to be someone who is unconditionally there for you, who accepts you, who loves you, and in whose presence you feel like your best selves. राइट. सो हमेशा जब हम रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होते हैं, इट डज नॉट मीन only romantic relationships. It means a rich pool of people that we might have around ourselves. Yes, also platonic and friendships as well. So no matter how busy we are, we should always make time to maintain our important relationships. While it might seem like people we know from school, work, sports and nightlife are good company. हमारा जो actual circle है जहाँ पर हम actively engaged होते हैं, ज़्यादा समय spend करते हैं, the author goes on to say they are not, I would change it, they might not be our good friends. Some of them may be our good friends, but
Real friends are the people we're most inclined to take for granted. Our own partner, spouse, parents, siblings, and best friends. यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट इनपुट आई वुड लाइक टू ऐड, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है लाइफ में अगर एक अच्छी रिलेशनशिप है हमारी, अगर पेरेंट्स के साथ हमारा अच्छा बॉन्डिंग और रैपो है, सिबलिंग्स के साथ हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और हमारे कुछ अच्छे बहुत अच्छे घनिष्ठ दोस्त हैं। ये एक प्रिविलेज है माय डियर फ्रेंड्स, ये हर किसी को नहीं मिलता है लाइफ में। इसलिए आई विल नॉट अग्री टू दिस दैट people from our school or work or sports night life are not our good friends. There might be people जिनके लिए the only good person might be a friend that might be a stranger that they meet at a night life. किसी की लाइफ इस तरह के डिस्टॉर्टेड हो सकती है साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव। आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव that we should be extremely kind to everyone। कई बार कैब वाला आपके टुवर्ड्स ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकता है बजाय जो एक्चुअल लव्ड वंस जिनके आसपास आप सराउंडेड है। लोगों के लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी हो सकती है रिलेशनशिप्स में। तो दो तरफा पावर होती है हमारे रिलेशनशिप्स की। आई थिंक व्हेन वी गेट दैट पर्सपेक्टिव तब जा करके ये बात कंप्लीट होती है, अदरवाइज ये अधूरी है। I had so many students when I worked as a school counselor who experienced grave challenges। उन बच्चों को ये बोलना कि पेरेंट्स के साथ जाके बात करो और बच्चे बता रहे हैं कि मम्मी मिर्ची डाल देती है आंख में या ऐसा कुछ, दैट वाज अ हाफ साइडेड स्टोरी। यू कैन बी एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स। फैमिलीज बहुत अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है लोगों की लाइफ में। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मौजूदगी में आपको सेफ महसूस होता हो, आपको अच्छा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस महसूस होता हो, आपका थेरेपिस्ट भी हो सकता है, वो कोई मेंटोर हो सकता है, कोई टीचर जो आपको लगता है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा आपको किसी भी रूप में, वो व्यक्ति आपका एक अच्छा कनेक्शन है। ठीक है। प्रोफेशनल बाउंड्रीज भी होती है रिलेशनशिप्स में, लेकिन एनी पर्सन जिसके साथ आप अपना सुख शेयर करते हो, जब आपको अच्छे मार्क्स आते हैं या जब आपको जॉब में कोई अच्छी माइलस्टोन मिली, तब आपको तब आपको वो व्यक्ति के साथ शेयर करके सुखद महसूस होता है। ठीक है। सो थिंक आई मीन कमिंग बैक टू बिग बैंग थियोरी, देयर वाज अनदर कैरेक्टर, वीनू जी विल अगेन अग्री, लेनर्ड हॉफस्टाडर, शेल्डन का रूममेट था। His mother was a psychiatrist, but she was experimenting on the kid and she was constantly very negative on the child because she wanted to study कि ऐसा करने से बच्चे के सेल्फ एस्टीम पे क्या असर होता है। So in that case, when I got an award in my first job, I called my mother. The author did this, but Leonard might not be able to do this. The mother might totally rip his self-esteem away. So you need to decide and look at your own circle and see who are those people जिनके साथ आप वो सुख शेयर कर पाते हो। वो ऑडिट हमें लेते रहना बहुत आवश्यक है। आई हैव एक्सपीरियंस, कई बार लोग डीप फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स जेलस होते हैं एक दूसरे के साथ में, तब आप शेयर नहीं कर पाते अपनी कोई अकम्पलिशमेंट या आप अंडर प्ले करते हैं। तो वो जो सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हमें काफ़ी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। जस्ट फेस वैल्यू पे ये पढ़ लिया और हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ऐसा नहीं। आपको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है। व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट हाउस आई कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड। व्हेन माय फादर सिक्योर्ड आवर फर्स्ट ऑफिस स्पेस ही कॉल्ड मी। सो द ऑथर seems to share a great rapport with his family members, which is amazing, which is good। आप अपनी लाइफ को ऑडिट करिए और देखिए आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, उनके साथ कैसा रैपो है और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको नरिशमेंट ऑफर करते हैं। स्टे मोर कनेक्टेड विद दोज पीपल। When my brother's short film was accepted into a festival, he called me. When my best friend got engaged, he called me. So the author has a good circle of people around himself, and I'm sure friends, हमने टीबीएफ में एक बहुत पॉजिटिव सपोर्टिव अच्छी कम्युनिटी हमने कोशिश करी है नर्चर करने की। and this is a good example of social circle not tied by blood, right? So ऐसी communities या ऐसे लोगों का सर्कल या ऐसे मित्र आपके जीवन में कहाँ कहाँ है, आप जरा एनालाइज करते चले। एंड बहुत और स्टैटिक नहीं होता ये, इट्स डायनामिक, पीपल चेंज, व्हाट वी आर माइट बी टुडे वी माइट बी हैव चेंज्ड। एक साल के कोर्स में काफी कुछ बदलाव आ सकता है। तो कोई व्यक्ति जो अभी फिलहाल बुरा है, उसके प्रति भी थोड़ी सी काइंडनेस या कंपैशन या एम्पैथी हम रख सकते हैं while protecting our boundaries। You might not need to go to drink coffee with somebody who has harmed you a lot in the past, but अपने भीतर अपने हृदय में हम उन्हें क्षमा कर सकते हैं कि
ही माइट हैव हैड सम सर्कमस्टांसेस, या उसका प्रारब्ध, उसके संस्कार ऐसे ही होंगे, वो उस तरह का बिहेव कर रहा है. आई डू नॉट नीड टू कैरी दैट रिजेंटमेंट इनसाइड मी. तो मैं भीतर से माफ करके भी उस व्यक्ति से दूरी बनाए रख सकता हूँ. Right? So every one of these situations revolved around a shared feeling of joy. That is important. You have joy and you're sharing it with somebody. When you genuinely wish someone the world, you know that it's a good relationship. तो यहाँ पर एक अच्छा मार्कर बता रहे हैं ये. Consider any person around yourself, और ये इमेजिन करिए उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होता है जो उसे बहुत सुख प्रदान करे, उसे अच्छा फील हो. हाउ डू यू फील about that accomplishment? Do you feel great? Do you feel happy for that person? If you do, that seems like a good relationship. And we don't need to have dozens of those types of relationships. In fact, social media creates kind of a false feeling of, if you have about 1,000 or 4,000 friends on your Facebook account, you seem to feel that you are extremely rich or wealthy, or you have a great circle, because circles seems to be equated with influence, which might be true to some extent. If you have subscribers or followers on your social media, people do tend to equate that as, actual support. And I would like to remind here कि actual support आपके 2 AM फ्रेंड्स हैं. किसी तरह की क्राइसिस, भगवान नहीं करे कभी किसी को हो, किसी तरह के क्राइसिस हो, एंड यू कॉल अप somebody and they are there at 2 AM for you. They come back to rescue you, or to save you, or to listen to you if you want to cry. Your social media pals might not be able to do that, or maybe there might be a limited, it has both its pros and cons. But हम deep bonding की बात करें तो deep bonding actual लोगों से जो आपके actual circle में है, I believe वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है. You might have endless number of digital friends, but if you do not have real people that you can talk to, or hold hands, or just sit with, थोड़ी सी थोड़ी सी मुफलिसी है फिर मेरे दोस्तों. If you have a few people who you know that they care about you, and you care about them as well, you are good. When you have someone to share good times with, you also have someone to share tough times with. So the author is now bringing reciprocity. So एक social relationships का एक dynamics होता है reciprocity. It's not always you are doing something for me constantly and I am at the receiver's end. I also need to be at the giver's end sometime. And although I might not be able to offer or give to you exactly what you are giving to me, I may have some of my offerings that might benefit you or nurture you in some or the other way. So हमें वो रेसिप्रोसिटी को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, विदाउट ऑलवेज टेलिंग यार तूने मेरे लिए ये कर दिया, ओहो अब मेरे को ये करना पड़ेगा. नहीं, वो जेंटली आप अपने लाइफ में ग्रेसफुली कैसे ला सकते हो, सो दैट द अदर पर्सन ऑल्सो फील्स हैप्पी रिसीविंग इट, एंड नॉट कि आप उसको स्टॉक करके लिख रहे हो बार बार कि मैंने ये करा वो करा वो करा, एक्सेल फाइल बना के रखी. ऐसे नहीं. लाइफ इजंट ऑलवेज जॉयफुल, दैट्स एक्सट्रीमली ट्रू. समटाइम्स वी गो थ्रू बैड टाइम्स दैट हर्ट, और ये हम सीखते चले जाते हैं कि जीवन इसी प्रकार से हमें ग्रोथ ऑफर करता है. रूमी says, the wound is the place where light enters you. So I do believe that हमारे जो deepest struggles या challenges या लाइफ में कोई एक एरिया जो हमें थोड़ा सा पेन ऑफर कर रहा है, वहाँ हमारा स्कोप है ग्रो करने का. We do not wish everybody pain of that sort, but that is an opportunity where we can detach ourselves and we can, grow considerably. But those bad times always hurt less when you have good people in your life. Friends, I'll like to take you to COVID times. It was not the best of times for us. But remember, when we were living with our family members, we were spending actual time with one another, cooking together, washing dishes together. That felt kind of nice, and that felt, यार ये हम क्यों नहीं कर रहे थे इतने टाइम तक. एंड देन थिंग्स शिफ्टेड. कोविड के बाद काफी हद तक मैन स्टार्टेड कुकिंग, एंड हम काफी चीजें सीखना शुरू कर दिए जो पहले हम बिजी लाइफ में आता, इट वुड नेवर अकर टू अस, राइट. सो वन गुड पर्सन हु इज देयर फॉर यू इज इनफ. Really, one good unconditionally loving person is worth an entire world for you. If somebody has your back, if somebody is out there and you feel extremely safe,
that's a hell of an accomplishment in life, I would say, अगर इस तरह के लोग हमारे लाइफ में होते, but you also have to be there for them, क्योंकि फिर वो sustain नहीं होगा if only the other person is constantly at the giving end. And that's the most important thing. When you have someone to share good times with, you also have someone to share the tough times with. और वो tough times टॉलरेबल लगते हैं जब हमारे पास कोई होता है उसे शेयर करने के लिए, ठीक है? To be a good friend, we should never focus on what the other does, focus on what you do. ये मैं बहुत strongly believe किया करती हूँ. ये over the years develop हुआ है. When I was in school, I think some of you remember I was studying in a boarding school. I was not someone who had a gang, you know. I was not someone who was in a group. And you know, I had friends who were in groups and they would conform to some social norms that they had created. Guys, हम आज green पहनेंगे, सब green t-shirt पहन के और shorts और हाथों में हाथ डाल के और कोई गाने गाए जा रहे हैं कुछ कुछ. मतलब there were, you know, those kind of yeah, I had classmates like that. And I although I did not feel like, you know, I might vibe with this kind of energy, but I was very nice to everybody in my class, my senior, my juniors. um I was mostly a library kid. Free time मिला, किताब उठाई, चल दिए लाइब्रेरी में अपना काम करने, अपनी पढ़ाई करने, शांत बैठने. But I definitely felt um I definitely felt that हम, even if I don't have somebody that I can call a tribe or a group or something, I will always be a great friend to anyone who comes and shares with me. तो therapist trait या tendency जो थी वो बचपन से थी. So some kids would come and they would rant, किसी और की शिकायत करते. फिर जिसकी शिकायत उस बच्ची ने की वो मेरे पास आके अपना perspective भी करते और उन्हें पता नहीं कि वो दोनों आ चुके हैं मेरे पास अपनी बात शेयर करने के लिए. तो वो एक interesting सा scene हुआ करता था. Whereas I would offer a good listening ear to to all my classmates, I would say. So to be a good friend, we should not focus on what the other does. ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी. आपको अपने ऊपर फोकस करना है. कई बार छोटे बच्चे आके बोलते, टीचर आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, नोबडी टॉक्स टू मी. कुछ छोटे छोटे बच्चे आके बताते थे काउंसलर के रूप में. एंड आई वुड रिमेम्बर माई डैड यूज टू टेल अस, तुम बेसहारा हो तो किसी के सहारा बनो, तुमको सहारा खुद ब खुद मिल जाएगा. सो कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई नहीं है, आप एक लोनर हो. बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका अच्छा सोशल सर्कल नहीं होता. वहाँ हम रेकमेंड करते हैं कि आप कॉन्शियसली वॉलंटियर करिए. आपसे जो थोड़े कम फॉर्चुनेट लोग हैं उनके पास ज़्यादा समय स्पेंड करिए, उनके लिए कुछ करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फाइनेंशियल रिटर्न्स और समथिंग, क्योंकि वो आपको एक डीपर लेवल ऑफ कंटेंटमेंट आपको ऑफर करेगा. आई थिंक एक बार मैंने शेयर किया था यहाँ हम सभी के साथ, हैप्पीनेस जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्टडी में दो प्रकार से हम मेजर करते हैं. एक एरिस्टोटल या सोक्रेटिस उस थॉट से आता है, उसे हम कहते हैं यूडाइमोनिया. आई एम नॉट श्योर इफ एनी ऑफ यू हैज कम अक्रॉस दिस वर्ड, यूडाइमोनिक हैप्पीनेस. ठीक है, यूडाइमोनिया. और एक है हेडनिक प्लेजर, मतलब हेडनिस्टिक हैप्पीनेस हम कहते हैं. ये दो अच्छा, इसमें से कोई एक को चूज करना ऐसा नहीं है. बोथ गिव अस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड वी नीड बोथ इन सम डिग्रीज, राइट? लेकिन कोई एक हेडनिक प्लेजर एक ऐसा है जिसको अगर हम ओवरडू करने लगेंगे तो फिर बहुत बुरा डोपामिन क्रैश होने के चांसेस होते हैं. हेडनिक प्लेजर समथिंग लाइक, चल यार आज नेटफ्लिक्स देखते हैं, मैगी बनाते हैं, मजे करते हैं, एंड इट गिव्स यू ग्रेट हैप्पीनेस. मजे आते हैं, अच्छा फील होता है. फ्राइडे नाइट, यू नो दैट फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग आती है. हम सब फ्राइडे नाइट्स को डिस्को नहीं जा रहे होते हैं, लेकिन फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को हम कम्युनिटी रीडिंग कर रहे हैं या कोई मूवी हमने प्लान की, आउटिंग की. ये वाले सुख जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं. ये हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, बट दे आल्सो मेक अस फील हैप्पी. जब हम दिल्ली हाट गए थे घूमने मित्रों के साथ में, दैट फेल्ट क्वाइट हैप्पी, राइट पलक? और एक और प्रकार का सुख होता है जो कि डीप लास्टिंग होता है. आप स्वयं इमेजिन करिए, आपको कोई एक चीज लेने का मन था एंड देन यू फाउंड समबडी जो और आपसे अनफॉर्चुनेट है और उसको भी मन है, और आपने वो चीज जब उस व्यक्ति को दी, उस व्यक्ति का जो एक्सप्रेशन था, आपको भीतर से थोड़ा सा गदगद फील होता है. देयर समथिंग इनसाइड यू दैट moves tremendously and you can't explain what is it, right? So when you do something for somebody who can't do anything for you, that
is an example of eudaimonic happiness. When you are trying to share something that you have beyond your own self, मेरे घर परिवार बीवी बच्चा मेरा रोटी कपड़ा मकान, उससे beyond हम जब कुछ कर रहे होते हैं वो eudaimonic happiness होता है. और यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है, be the friend you want to have. आपको यदि नहीं मिल रहा है वैसा, तो आप वैसा बनिए और लोगों के जीवन में बहुत सारा सुख आ जाएगा आपकी मौजूदगी से, और आपको भी नरिशमेंट मिलेगी. थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा. डेडिकेट टाइम एंड एनर्जी टू पीपल हु अंडरस्टैंड. अच्छा, यहाँ पे ऑथर एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं. अगेन दिस इज अ मेटाफर दैट आई हैड यूज्ड अर्लियर, द गुडनेस बैंडविड्थ. हम सभी वाईफाई यूज कर रहे होंगे हमारे घर में नेटवर्क के लिए, और एक एक्सटेंड तक वो नेटवर्क चल रहा है. आप जब तक उस बाउंड्री के अंदर है तब तक वो नेटवर्क चल रहा है. आप घर से थोड़ा बाहर निकल जाएंगे तो ये नेटवर्क काम करना बंद कर देगा. आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे, राइट? जहां जहां कनेक्शन है वहां पे आप सुन पा रहे हैं. तो एक क्वेश्चन था कि हमें अच्छा होना चाहिए यूजुअली, और ये हम जिस तरह से माहौल में ग्रो होते हैं वहां हमें सिखाया भी जाता है, बेटा यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड पर्सन, राइट? बट यहाँ एक important metaphor I had learned from my mentor, and that said there has to be a bandwidth to your goodness. There is there is some kind of energy around where you do something for people and they might never appreciate you. हो सकता है उनकी फैकल्टी नहीं है, हो सकता है वो काफी अनग्रेटफुल एटीट्यूड लोगों का हुआ करता है, वहां भी आप कंटिन्यू करते ही जाएं. दैट इज नॉट नेसेसरी एनी मोर. एक टाइम पे शायद होता कि आप नेकी करो और दरिया में डालो और भले रहो. एक चांटा खाया दूसरा गाल भी ऑफर कर दो. अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एक चांटा खाया तो पलट के एक और खींच के लगा दो अगले को. आई एम नॉट सेइंग दिस. चांटा खा लिया तो ये पता चल गया कि यार इस बंदे की क्षमता है चांटा मारने की, और ये मेरे को मार भी पाता है. और मैंने खा लिया, मुझे फील हो गया कि बहुत ज्यादा दर्द हो, तो अगली बार डू नॉट पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन जहां पे आपको चांटा पड़े उस व्यक्ति से. वो बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना डेफिनेटली हमारे हाथ में, और वो हमें करना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आपको लगता है कि आपसे बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है, तो आप अपने आप को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट जरूर करके रखिए नेगेटिविटी से. ठीक है, ताकि आप और बेटर सर्व कर पाए और लोगों को. व्हेन अदर्स आर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, पता चल जाता है, वाइब फील हो जाती है. ठीक है, and be honest about that. If others do not want to be in your life, I have seen this so much. लोग क्लियर इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि अबे यार तू भाग, डू आई डोंट नीड यू, और फिर भी हम चेप की तरफ बने रहते हैं. नो, इट हैपेंस. बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं हम, तो वो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट हमें अप कर देना चाहिए. We should never try to force any type of relationship. It's not healthy for us. Just know that there are many people in the world who do care about deep relationships. You will find that tribe for sure. It's much better to dedicate your time. I would like to quote Sahir Ludhianvi here. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन. आई रिपीट, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन. कोई एक रिलेशनशिप नहीं बढ़ रहा है आगे की दिशा में, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. बहुत ग्रेसफुली, लीस्ट हर्ट के साथ में वहीं पे उसको छोड़ करके चलते बनिए, भाग जाइए वहां से बस. ठीक है, एंड डू नॉट रैंट अबाउट इट, डोंट गो बैक. इन्वेस्ट एंड डेडिकेट योर एनर्जी टू समथिंग एल्स. ओके, सो बेटर टू डेडिकेट योर टाइम टू फाइंडिंग दोज पीपल. If you don't have them already, be one. Be the person that you needed when you were younger, or that you need at this point of time in your life. Be that. Nurture on becoming that person. Many of us already have few people with whom we were always close, और हमने शायद वो रिलेशनशिप या रैपो मेंटेन नहीं करी. वी नेवर सेड स्टफ लाइक आई अप्रिशिएट यू. तो दोस्तों, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपके जीवन में यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी कुछ करते हैं आपके लिए, और आपने एनफ नहीं कहा हो कि आई अप्रिशिएट यू, आफ्टर द सेशन प्लीज सेंड अ टेक्स्ट, और बेटर स्टिल सेंड अ वॉइस नोट, एंड जस्ट टेल देम दैट यू वैल्यू देम और अप्रिशिएट देम. उन्हें लग सकता है कि आप बहुत ही पागल हैं, क्रेजी हैं, मगर सो बी इट. बी क्रेजी इन दैट सेंस. वैल्यू पीपल दैट यू हैव इन योर लाइफ. And look, no matter how cool or badass you are, it's always good to let people know that you appreciate them. That's all it takes to build relationships. Genuinely acknowledging. ऐसे ऐसे random नहीं कि अरे वाह तुम तो बड़े कमाल हो. ये बहुत जेनरिक सा appreciation है. Actual
कि यार आप ये जो चीज करते हो ना, ये मेरे को, आई रियली वैल्यू दिस सो मच, ये मेरे को बहुत सही लगती है। राइट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम पहला जो चैप्टर है उसको रैप कर रहे हैं। एंड पलक, आई थिंक यू माइट वांट टू टेक अ पिक्चर, राइट? सो quickly inviting you to take a selfie. Yeah. Over to you, Shirsan. Good morning, everyone. I request you turn the camera, show the book because this book is going to finish in next few weeks. Ready, everyone? Smile. Done. Thank you. Thank you, sir. Palak, would you like to have a share here right now, or we can proceed to the next chapter? Yes, we can discuss. Anyone would like to share? Actually, listening to you Yes. is such a treat कि हम हमें बोलने का मन नहीं हो रहा है. नहीं नहीं. So अब वो मेरा ईगो इतना फ्यूल नहीं करना चाहिए. आई थिंक फ्रेंड्स, हम सभी बहुत वैल्यू ऐड करते हैं. So if anyone has anything to share in this first chapter, you can. And really nice to see all of you, fresh morning faces. उसके बाद हम next chapter पे move कर जाएंगे. जी. Yes. Kamal, would you like to share something? Hello Richa, hello everyone, good morning, namaste. You have already shared so beautifully that जैसे पलक ने बोला कि बस सुनते रहें. There is nothing much to share. You have covered so many beautiful things along with some metaphors, examples. But यही कहूँगा कि खुशियाँ बांटने से कहीं गुना बढ़ जाती है और दुख बांटने से आधे हो जाते हैं. तो yes, if you are not finding someone with whom you are going to share such vulnerable things, then be the one. बी द वन. और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, तो मुझे खोना मत. चलो, थैंक यू. Thank you. One more Yes, thing sir. we are learning so many psychological terms. Yes, thank you. Kamal Thank sir, you, I, sir. ap- I appreciate you a lot. Palak ji and Risha Promise sir. आपको शायद पहले नहीं किया होगा, but now I am appreciating from my heart. सर, इससे नहीं चलेगा, हमें ना आपसे डीएम चाहिए. हाँ, यहाँ आप मतलब आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता. ओके. एनीवे फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा डिफरेंट है इस फर्स्ट चैप्टर से. um I just started sharing my screen. Are you able to look at the screen? Can you see? Just a second. No, you can't see, right? Okay. So Palak, if in 30 seconds we're not able to see the screen, would you be able to share? Yeah, okay. So next chapter का topic जो है वो बहुत ही different है. और वो theme है on living through anxious times. So very, very different. Can't share my screen. Okay, something went wrong. मेरा जो है screen share. I'm just trying once more, then Palak you can if I'm unable to. इसी के साथ एक और प्रयास किया जाता है अपना स्क्रीन शेयर करने का, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को नजर आ रहा हो. ओके, नहीं, नॉट येट, राइट? कांट दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, चला गया. मेरे पास आया कांट शेयर माय स्क्रीन. पलक, कैन यू डू दैट? आई थिंक वी कैन सेव एवरीबॉडीज टाइम. We can go without screen sharing because if I do the screen sharing, my recording will be paused. ओके. I want the ओके फाइन. recording. ओके, ठीक है, नो इश्यूज. ठीक है, फाइन. सो यहाँ पे फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स इवन नाइस टू सी एवरीबॉडीज फेसेस हियर व्हाइल वी रीड. ओके, सो गुड. तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एडवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं. ऑथर यहाँ पे कुछ पर्सनल एग्जांपल्स भी बताएंगे अपने पेरेंट्स के बारे में,
और उनकी लाइफ में किस तरह से एडवर्सिटी ने ऑपरेट किया था. आई डू अग्री टू सम ऑफ द पॉइंट्स, बट आई ऑल्सो हैव सम एडिशंस टू मेक with respect to what the author is sharing out here. So he's bringing this introduction कि कई बार ना हम एक्सपेक्ट नहीं करते जब हमारे लाइफ में कोई किसी प्रकार की एडवर्सिटी आ जाती है. ऑब्वियसली नोबडी एक्सपेक्ट्स, नोबडी इज लुकिंग फॉर एडवर्सिटी इन देयर लाइफ, इजंट इट? हम मोस्टली, ये साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं, मोस्टली वी आर always anticipating good times. We're always in anticipation of happy, joyful, positive times जो कि हमें हमें सुख दे. इनफैक्ट इसको एक प्रिंसिपल हम कहते थे, मैन ऑलवेज सीक्स टू इंक्रीज प्लेजर एंड रिड्यूस पेन. मतलब प्लेजर अप, पेन डाउन, इस तरीके से कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे. ठीक है. और पुराने फिलोसोफर्स का भी यही हुआ करता था कि मनुष्य जो है उसका यही एम है लाइफ में. बाद में धीरे धीरे कुछ और जो फिलोसोफर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि यार सिर्फ यही नहीं है लाइफ में. जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, यदि आपने पढ़ा हो, रिचर्ड बाक की बुक है, मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है बट उसके कुछ कोट्स बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे स्ट्राइक किए हैं. तो उसमें वो जो सीगल होता है वो उड़ना चाहता है आसमान में, और बाकी जो सारे सीगल्स होते हैं वो हंसते हैं उस पे कि यार हम तो बॉर्न ही नहीं हुए हैं उड़ने के लिए, हमारा तो काम ही है बस खाओ पियो सो और उठो और वापस जाओ वॉडल करके और जाके मछली पकड़ो और वापस आ जाओ. यू नो दैट हम सीगल्स ये करना करते हैं. तो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक्चुअली में उड़ना चाहता है. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो सफल हुआ कि नहीं, वो पूरी तरह से प्रयास कर रहा होता है. एंड उसका कोटेशन जो ये है, देयर इज सो मच मोर टू लाइफ देन जस्ट फाइटिंग फॉर फिश हेड्स. आपस में सिर्फ मछलियों के लिए लड़ना हम सीगल्स का जो काम है, उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारे काम है. तो इब्राहिम मैस्लो और उसके बाद उनके बाद में और जो साइकोलॉजिस्ट थे, पहले सिगमंड फ्राइड या साइकोएनालिसिस में होता था कि ह्यूमन सिर्फ सेक्स और अग्रेशन, इरोस, थानाटॉस ऐसे कॉन्सेप्ट्स में ही इन्वॉल्व होता है, पूरी लाइफ निकाल देता है. बाद में जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट आए, जिनके साथ मैं बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करती हूँ, उन्होंने कहा कि यार इसके अलावा भी ह्यूमंस की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है. तो मैस्लो ने अपनी नीड्स हायरार्की जब बताई, तो रोटी कपड़ा मकान सबसे नीचे आता है, फिर सेफ्टी, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम, ये सब पूरा जब हो जाए पूर्ति, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मैं वो हो जाऊं जो होने के लिए मैं आया था. मेरे भीतर एक जो सीड है वो ब्लूम कर जाए. मेरा जो पोटेंशियल है, यदि मैं पूरी वर्ल्ड को कुछ ऑफर कर सकता हूँ थ्रू योगा, थ्रू म्यूजिक, थ्रू एनी ऑफ माय टैलेंट्स, थ्रू रीडिंग, माय लर्निंग, माय टीचिंग्स, व्हाटएवर, थ्रू इवन फाइनेंस, यू कैन वर्क इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड येट सर्व द कम्युनिटी कंसिडरेबली. वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है, राइट? तो वो एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. सो यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि लाइफ में क्राइसिस आए. और जब कोविड आया था तो क्या हमने सोचा था कि ऐसा कुछ आ जाएगा? नहीं, हमने नहीं सोचा था. वी हैड नो क्लू, राइट? यूजुअली हमें लग रहा था कि एक फ्लू है और हमारी लाइफ ज्यादा इंटरप्ट नहीं होगी. एक प्रकार से कोविड जब आया तो एक लाइफ को रीसेट पे लेकर के आ गया. उससे पहले तक हमें होता था कि चलो भागो, ऑफिस जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस, जस्ट अर्न लॉट ऑफ मनी. उस समय हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मनी अर्न कर रहे हैं मगर जान नहीं बच पा रही है उससे भी. तो जब तक जान है तब तक थोड़ा 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 हम लाइफ को एक्चुअली कर पाए सेवर, राइट? वो रियलाइजेशन आई थिंक काफी गहरा था. मुझे लगता है एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में वो काफी इनक्रेडिबल पर्सपेक्टिव गिविंग इवेंट था हमारे लाइफ में. इट मेड अस रीथिंक कि व्हाट इज इट दैट ट्रूली मैटर्स इन आवर लाइफ, राइट? तो कोविड से जो प्रॉब्लम्स हुए थे, हेल्थ इश्यूज और जो भी, वो सालों साल लिंगर करेंगे. आप इमेजिन करिए कोविड के टाइम जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया था या जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू ही किया था केजी नर्सरी में, वो ऑनलाइन ही उनका फर्स्ट इंटरफेस था. कई बच्चों के जो टीनेजर्स थे उनका सोशल लाइफ कंप्लीटली कोलैप्स हो गया था. बहुत सारे इम्प्लीकेशंस थे. सो द पीपल हु लिव थ्रू दैट टाइम हैव केप्ट द स्कार्स फॉरएवर, राइट? सो एनी क्राइसिस cannot just go away without leaving a deep impact is something which we all agree on. Okay, same thing with, अच्छा एक और चीज है, कई बार ना सोशल मीडिया पे बहुत वियर्ड चीजें चल रही होती हैं. तो उस पे एक ये था कि आवर फोर फादर्स माइट नेवर नो, हम कोविड बहुत बड़ा क्राइसिस एंड ऑल ऑफ दैट. बट अगर आप एक्चुअली में इंट्रोस्पेक्ट कर पाए
हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से हम नहीं कर पाएंगे कनेक्ट कभी, मतलब वो जनरेशन ही बहुत डिफरेंट थी। बट ये इमेजिन ही करना कि 1910s या 1920s में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है और जो लोग एक्चुअली में रहे होंगे वहां, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा विदाउट एनी टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या और भी वो नेशंस, वो कंट्रीज या कल्चर्स जहां पर ये डिफॉल्ट है कि आप बैठे हो कभी भी ऊपर से कुछ भी आ जा रहा है, जो इस तरह के एकदम जिसे हम कहते सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। हम कई बार बहुत चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब हम एक्चुअली इस धरती पे होते हैं, हमें हमारे देश के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, वाकई यदि चले जाएंगे किसी ऐसे देश में जहां अगले सेकंड का कोई भरोसा नहीं है, तब बहुत ग्रैटिट्यूड आएगा कि हम एक बहुत सेफ कल्चर में है। हमारे सिर पे जो आसमान है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, considerably as compared to what other people are facing. Anyway, this chapter will bring in some disturbing aspects, and just let's use that as reflections. So, author के parents जो थे 1980s में तेहरान में वॉर हुआ था ईरान में, उस समय उसके पेरेंट्स ने अनुभव किया था फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस। 8 साल तक उनकी लाइफ बहुत डीपली इम्पैक्टेड थी। और वहां पर उसने ये कहा कि आप अपना पैशन परस्यू नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पे टीबीएफ जैसी कम्युनिटी थ्राइव कर पाती, बिकॉज बेयर मिनिमम सर्वाइवल वाज एसेंशियल, राइट। तो वहां वो एग्जांपल दे रहा है कि एक इन्वेस्टर सैम जेल थे, जो जू थे, और आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जू फैमिलीज के साथ में क्या होता था। उनके पेरेंट्स को हल्का सा हंच हुआ और वो तुरंत फ्ली कर गए पोलैंड। Now, again, I would say, although it's extremely tragic, it might be a privilege कि आप flee कर पाए। एनी फ्रैंक के बारे में हम पिछले साल ही पढ़ रहे थे इन्हीं दिनों में, राइट। और विक्टर फ्रैंकल के बारे में भी हम कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। सो देयर माइट हैव बीन सो मेनी फैमिलीज जो बहुत डीपली इम्पैक्टेड थे एंटीसेमाइटिज्म से। बट उसके फादर को भीतर से एक हंच मिली और वो अर्जेंसी फील करके तुरंत वहां से निकले। अगर हमारी लाइफ में ऐसा क्राइसिस हो, भगवान बिल्कुल ना करे, कभी ऐसा हो, और यदि एक आपको हंच या इंट्यूजन आ रहा है और आप उस पर एक्ट कर पाए, ऑथर कह रहा है कि वो एक अच्छी बात है, वो सही चीज है कि आप क्राइसिस को समझ करके उसके तुरंत अकॉर्डिंग एक्ट करें। मैं यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव जो थोड़ा सा डिसअग्री करती हूँ ऑथर से, वो ये है, अक्सर लाइफ में स्पेशली नेचुरल कैलामिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी भी तरह का जैसे अभी रिसेंटली हमने दिल्ली में भी सुने कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज, राइट। कुछ ऐसे मैसाकर्स होते हैं जो दस्तक नहीं देते या आपको बिल्कुल मैसेज नहीं करते कि हे आई एम कमिंग, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, हमें पता ही नहीं चलता है, हम उसे एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे होते हैं। और वहां पर ये कहना या ये एक्सपेक्ट करना कि यार हमें ना प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्राइसिस में, एक सेकंड में नहीं मिलता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं, वहां हम नहीं कर पाते हैं कुछ प्रिपेयर। दिस इज अ पॉइंट विच आई स्ट्रांगली फील द ऑथर हैज मिस्ड एडिंग आउट हियर। ये ऐड करने से ये बात कंप्लीट होती कि एडवर्सिटी अगर है, ऐसे लाखों लोग हैं वर्ल्ड में जिन्हें नहीं मिलती नोटिफिकेशंस उनके चैलेंजेस की। और ये काफी गहरी बात है ये। फ्लड आया, आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, तुरंत गया। बहुत सारे लोग बोटिंग करने जा रहे होते वहीं डूब जा रहे हैं। बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीजें, कुछ मैनमेड क्रिएटेड है, कुछ नेचर बिकॉज ऑफ मैनमेड एक्शन, जो भी रीजंस होते हैं हमारे लाइफ में हर तरह के क्राइसिस आते हैं, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। उनमें से कुछ है जिनकी हम तैयारी कर पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनका हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वहां एक स्वीकार भाव यदि जीवन में हम ला सके, और वो उस इवेंट पे नहीं आएगा, यदि हमारे डे टू डे लाइफ में एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हमारे भीतर है, तभी जाकर के उन टाइम्स में वो एक्सेप्टेंस काम कर पाएगा, राइट। यहाँ एक क्विक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। एन इवनिंग इन समारा बोल करके एक स्टोरी मैंने मेरे अर्ली एडोलेसेंस में पढ़ी थी। एंड इट सेड कि एक राजा थे दल में, मिडिल ईस्ट में, और उनका एक पर्टिकुलर मंत्री था, और प्रिडिक्शन ऐसी हुई थी कि ये जो मंत्री है ये आज मर जाएगा, आज इसकी डेथ होएगी। और वो राजा के, उसको सपना आया या किसी भी तरीके से प्रेमोनिशंस हुए, उसे पता चल गया। और वो राजा को आकर के बोलते हैं कि जहाँ पना
मैं आज तो मेरी जिंदगी बहुत ही वो है खतरे में है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड जहाँ पर ना टेल्स हिम अरे अरे यू शुड जस्ट कंप्लीटली escape, just go away from place, death will not be able to find you. और वो राजा पूरी व्यवस्था कर देते हैं, वो घोड़ा ऊंट ऊंट जो भी जैसे हाथी वाथी करके उसको बिठा करके जस्ट सेंड्स हिम टू अ स्मॉल सिटी कॉल्ड समारा. और वो किसी और सिटी में रह रहे होते हैं और जल्दी से बस तुम भागो यहाँ से, तुम निकलो, डेथ यहाँ पे आएगी तुमको पकड़ने के लिए और तुम नहीं मिलोगे. और वो शाम तक जाके समहाउ लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो समारा पहुंच जाता है मार्केट प्लेस में. और वो थोड़ी सी देर 1 सेकंड बस बैठ करके बगल में कहीं से पानी की सुराही लेकर एक सिप पानी पी रहा होता है. वहीं पे एंजल ऑफ डेथ उसके पास आके कहती है, वाह, आई एम सो अमेज्ड एट ऑलमाइटी गॉड. वाह, उसकी लीला बहुत ही, वो ये भाषा नहीं यूज किया होगा, मैं अपना अपनी भाषा यूज कर रही हूँ, उसकी लीला अपरंपार है. And today I was supposed to pick you from Samara and I was wondering कि तुम कैसे पहुंचोगे इस शहर में क्योंकि तुम इतने दूर हो यहाँ. मगर वाह उसकी लीला. He really brought you here. My faith in Almighty God has increased. मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी दिन जब लिखा है कुछ, हम लाइफ में डेस्टिनी और फ्री विल दोनों का बैलेंस है. हमारे अंदर फ्री विल है एक लेवल में, उसको हमें एक्सरसाइज करना भी चाहिए. ये नहीं कहेगा कि यार डेस्टिनी है, मैं तो ऐसा ही, मेरे साथ तो यही होना है, मैं बैठ जाऊं बस डूइंग नथिंग. ऐसा नहीं है, अपना कर्म हमें करना है. लेकिन जो डेस्टिनी है, जो हमारे कार्मिक जो भी हमारे वो जर्नी है, उसे भी बहुत ग्रेसफुली नेविगेट करना है. और जहां नहीं कर पा रहे नेविगेट, वहां एक्सेप्ट करना है. ये एक लेसन आई थिंक इस एक स्लाइटली चैलेंजिंग चैप्टर से हम ले सकते हैं. तो इसने बताया कि जेल की फैमिली अमेरिका पहुंच गई 2 साल में ट्रैवल करके. बहुत सारे ऐसे परिवार है फ्रेंड्स, उनके फाइनेंसेस नहीं होते, वो नहीं कर पाते ऐसा क्राइसिस, तो वो क्राइसिस में ही they have to give in. The author can relate to the story because his parents also fled due to war, which is why we have this author here and which is why we are able to read a book written by him, right? तो अब ये कह रहा है कि अगर आप एक ऐसे सेफ कंट्री में हो जहां पे आपको न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट के बारे में नहीं सुनना पड़ रहा है, तो आप सेफ हो, लेकिन और आप इन इमोशन से डील नहीं कर रहे हो एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी थोड़ी एंग्जाइटी आपके भीतर होती है ये सुनकर कि कहीं कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है, राइट? ठीक है, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ऐसा ये ऑथर कह रहा है. एंड आई कॉन्ट्राडिक्ट, हम नहीं हो सकते बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर, ओके? तब जाकर के ये बात कंप्लीट होती है. हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा. थोड़ी सी रेडीनेस हम अपने टैंजिबल गुड्स के साथ कर सकते हैं, थोड़ी रेडीनेस हमें अपने मेंटल थॉट्स के साथ करनी पड़ेगी, राइट? तो सेनेका कहते हैं फॉर्च्यून फॉल्स हेवीली ऑन दोज फॉर whom शी इज अनएक्सपेक्टेड. यदि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते क्राइसिस, तो ज्यादा नुकसान होता है. अच्छा एक चीज सोचिए, एक केले का छिलका है और आप गप्पे करते हुए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में और आप उसी की तरफ देख रहे हो, आपको नहीं पता था छिलका आप उस पर स्लिप कर गए, आपको ज्यादा जोर से चोट पहुंचेगी. और आप देख रहे थे और आपके सामने वो था, ऑल्दो आप गिर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको, आप अपना हाथ रख देंगे नीचे या किसी प्रकार से कोशिश कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को कर पाऊं सेफ गार्ड. उसके बावजूद भी आपको ज्यादा चोट लग सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट आप अलर्ट नहीं होते ना, तो बहुत जोर से झटका लगता है आपको, पीछे से कोई आके गुदगुदी करता है तो ये काफी शॉक फील हो जाता है, राइट? ठीक है, सो एज अ स्टोइक द ऑथर इज सेइंग हमें पैरानॉइड नहीं होना है, बट हमें अलर्ट रहना है जरूर. यहाँ पे अगेन अनदर साइकोलॉजिस्ट इनपुट, हमें हाइपर विजिलेंट नहीं होना है. कई बार हमारे भीतर ये टेंडेंसी हो जाती है, कॉन्स्टेंटली ऑन दी गार्ड्स रहते हैं हम कि यार कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा. ऐसा नहीं, हमें अपनी लाइफ बहुत ग्रेसफुली जेन्युइनली बितानी है. कुछ अगर आपदा विपदा आ भी जाए तो हमें अपना इमोशनल बैलेंस नहीं खोना है. वो इंटैक्ट रहेगा तो हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, हम चूज कर पाएंगे कि ये मेरे हित में है, ये मैं कर सकता हूँ, या ये मेरे लव्ड वंस को मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑथर कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूज. और हम सभी इस बात को अग्री करेंगे, न्यूज की इंडस्ट्री थ्राइव करती है एंजाइटी स्प्रेड करने में. My dear friends, you have no idea how this is impacting you. All of that, that is the funda of news. जितना आप घबराहट में रहोगे, जितने डर में रहोगे, उतना आप देखोगे वो चैनल, आप वो एड्स भी देखोगे, चैनल को स्पॉन्सरशिप मिलता जाएगा. You might enjoy watching some news, you might enjoy knowing. मैं यहाँ पेरेंट्स के घर में हूँ, यहाँ पे अखबार आता है एक्चुअली,
मेरे घर में हमने कॉन्शियसली चूज किया कि यार सुबह सुबह हमें नेगेटिविटी नहीं लानी है। यहाँ आता है एंड यू रीड इट, और हर दिन हम बेलिटल नहीं कर रहे, एवरी सिंगल पेज पे इतनी सारी नेगेटिविटी, गांव में कहीं ये कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ नेगेटिविटी। so much of input हम अपने भीतर दे रहे हैं. I'm not saying you should not be aware of what's going on in the world. You should, but you don't need to feed yourself constant. हर चीज हमें जानने की जरूरत नहीं है. कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हमारे आसपास जो हमें इम्पैक्ट करती किसी रूप से, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान करके रखना हमारे लिए जरूरी है. मगर हर एक गांव में, हर एक शहर में, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ ये एक टेंडेंसी है, मेरे को बहुत अंदर से कीड़ा आता है कि यार क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, कौन क्या कर रहा है. और कई बार मैं बहुत ओवरवेल्म फील करती हूँ कि इतना सारा नेगेटिविटी मेरे भीतर आ गया कि ह्यूमंस इस एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं. तो वो काफी जोर से चेक रखना पड़ता है. So the author says, my recommendation is to stay away from forums like Twitter and all, जो कि आर्मचेयर एक्सपर्ट से भरे हुए हैं. आई स्ट्रांगली अग्री टू दैट, स्ट्रांगली. हर किसी के पास आज के जमाने में ओपिनियन है. हर कोई एक मोबाइल फोन सबके पास, दूध वाले के पास भी है, और वो भी अपना एक वीडियो बना दे, हेलो फ्रेंड्स हमें ये लगता है कि ऐसा हो रहा है. और वो आप देखेंगे और उनके हमारे से ज्यादा व्यूज होते हैं एक्चुअली, ज्यादा फॉलोअर्स. पता नहीं क्या बहुत बहुत क्या करते हैं वो, आई डोंट नो. द एल्गोरिदम वर्क्स ट्रेमेंडसली इन देयर फेवर, राइट. और वो आर्मचेयर एक्सपर्ट्स बेनिफिट कर रहे हैं आपकी अटेंशन से. आप उन्हें देख रहे हैं, फायदा उन्हें हो रहा है, आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं. ये डिस्क्रिशन हमें रखना बहुत जरूरी है. तो यहाँ ऑथर एक बहुत अमेजिंग लाइन कह रहे हैं, वो है, यू आर आउटसोर्सिंग योर थिंकिंग टू अदर पीपल. अपनी सोच अपने पास रखो. आपकी एक फैकल्टी है, उसको ग्रो करो, उसको डेवलप करो. आई थिंक यूपीएससी में जब हम पढ़ते हैं तो ये एक कंसिडरेबल एस्पेक्ट होता है कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस को हम इम्पैक्ट करें. सैडली वहां भी काफी हैवी डोज ऑफ ओपिनियन, प्रोजेक्शंस और ये सारी चीजें होती है. बट रैशनली हम कोई चीज को सोच पाए, ये एक बड़ा स्किल है जो हमें एक योगी के रूप में या एक अच्छे रीडर के रूप में हमें डेवलप करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ ऑथर tries to conclude by saying, मेरे पेरेंट्स उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी, जिनके पास करेज था और वो छोड़ गए. भले उनके पास उस समय ज्यादा कुछ नहीं था, बट उन्हें ग्रेविटी समझ आई कि यार यहाँ हमारा रहना दूभर है, निकल लो यहाँ से. सैम जेल अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि ऑलमोस्ट पेरिश हो चुकी थी, खत्म ही हो जाते, बट समहाउ दे जस्ट डिसाइडेड कि निकलना है. राइट. लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्श है. स्टोइक्स को ये एहसास होता है और वो हमें इनकरेज करते कि हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स बने और लाइफ में जो भी आए हम उसकी तैयारी करें. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जितना जोर लगा लो, जितनी तैयारी कर लो, हम कुछ कर नहीं सकते. वहां हम स्वीकार भाव रखें हमारे भीतर. इसी के साथ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सुबह मेरे साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल to be able to read these two amazing chapters with you all. And now I open the room for discussions from your end. शेर सर, आप moderate कर सकते हैं discussions. Yes. Thank you. Amazing actually. हम सब सुन ही रहे हैं आपको, and it was a treat as always to listen to you. I would request you all to share your views regarding both the chapters. Yes, Sher sir. Yes. First of all, thank you very much. So beautifully explained. कुछ जैसे रमेश सर ने कहा कि कुछ हमें साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए. So thank you very much for that too. इसके बारे में मैं कहूँगा कि एज ए सोल्जर वी आर ट्रेन. हमारा एक बहुत फेमस कोट है, द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर. तो वो लाइफ में हर जगह मतलब अप्लाई होता है कि वॉर की मतलब जितना हम पीस टाइम में अपने को प्रिपेयर करेंगे, उतना ही जो हमारा जो अनएक्सपेक्टेड टाइम है, हम उसको ही उतना स्ट्रांगली उससे पास थ्रू हो सकते हैं. लाइक एग्ज़ाम अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हो गया. तो अगर हमारी तैयारी हमारी अच्छी होगी, हम केवल हर जगह टॉप करने की ना सोचें, केवल उससे कंफर्टेबली गो थ्रू होने की सोचें. हम ये सोचें कि जैसे माय किड्स ऑल्सो, मैंने अपने बच्चों को बोला, बेटा आपको केवल पास होना है, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन इट्स ओके, टॉप करने की जरूरत नहीं है.
और हाईएस्ट मार्क्स की तो सोचना ही नहीं है। तो उनको कोई एंजाइटी नहीं है कि हमें तो 90% लाने हैं, 80% लाने हैं। बस बेटा पास होना है आपको, लाइफ में टॉप करे कुछ मिलने वाला कुछ है नहीं। वैसे ही हमें लाइफ के हर एक्सपेक्ट में डेली काम करना है, तो उससे क्या है कि हम किसी भी टफ फेस में इजीली पास थ्रू हो जाएंगे। इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई ऑलवेज वर्क ऑन दिस कि कहीं टॉप नहीं करना, ठीक है, पास हो जाएंगे इजीली। ताकि जो चीज़ अनवांटेड है उनको हमें रेडी होना चाहिए, उनको लीव ऑन करने, लेट गो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Wonderful. Thank you, sir. Yes, Venuji. Good morning. Good morning, everyone. So, yeah, it was amazing. ऋचा जी का सेशन तो मिस नहीं करना है। एंड यस, ये अनसर्टेनिटीज तो रहेगी। तो जून 21 पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा। तो योगा ऐसा है कि इट बैलेंसेस, इट गिव्स अस दैट इक्वानिमिटी जो हर अनसर्टेनिटीज को हम बैलेंस करके जा सकते हैं। या इट्स ग्रेट। एंड नॉट ओनली न्यूज़, ऋचा जी, ये सारे प्रिडिक्शंस जो करते हैं वो भी एंजाइटी, दे ट्रिगर दोस एंजाइटी एंड अदर नेगेटिव इमोशंस। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मीन all such this thing nonsense they create. And बहुत ही बढ़िया था आपका प्रेजेंटेशन। आज हमने जाना कि आप बचपन से ही काउंसलर थे। You were already counseling so many people. Thank you so much. Thank you so much, Venuji. Yes, वो बीज स्कूल में पढ़ गया था ऋचा जी की काउंसलिंग का। Wonderful. And yes, Rumit sir, would you like to share? Kamal sir, Rumit sir. Today we have amazing combo, I would say. मतलब रीचा जी तो ऑलवेज हमको सरप्राइज कर देती है, बट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू हैव आदित्य जी एंड आवर दिस थिंग। और आदित्य जी आप आते रहिए, हमको अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर अमेजिंग। आपका म्यूजिक जो है वो तो हमको कहीं और ले जाता है। एंड अगेन थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल श्लोका ऑल्सो यू पोस्टेड, एंड ऑलवेज इट इज इंस्पायरिंग। और बाकी तो no words for today's session. Everybody has said what I wanted to say. Thank you again. Thank you, Rumit sir. Yes, Kamal sir. Yeah, once again a wonderful chapter, beautifully described by our loving Richa ji. जैसे आप बता रहे थे कि we can't be ready for such calamities, मतलब माइक्रो सेकंड भी नहीं मिलता, and we should be away, away from the negative things, but we should be prepared at the same time. We should be like alert. तो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड टाइम, क्योंकि उस समय आप जब भी न्यूज़ खोलो तो एक ही चीज़ दिखती थी, इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोग मर गए, इटली में लाख लोग मर गए। तो उनके लिए पीपल वर लाइक जस्ट नंबर्स। लेकिन एक परिवार का यदि कोई भी एक व्यक्ति भी गया तो उसके लिए तो उसका पूरा परिवार चला गया, समझे, है ना। तो मतलब मैंने बहुत साल पहले, मतलब आई थिंक ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम ओनली, आई हर्ड दिस थिंग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो न्यूज़ में ही है। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम आई डिसाइडेड कि हम न्यूज़ नहीं देखेंगे, हम मूवीज़ देख लेंगे, हम गाने सुन लेंगे, हम न्यूज़ नहीं देखेंगे। एंड आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू दिस थिंग कि न्यूज़ नहीं देखनी है कुछ भी। मतलब वी वर अवेयर कि क्या चल रहा है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो है ही, बाहर नहीं जाना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बट न्यूज़ देखकर और नेगेटिविटी क्यों करनी। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई डिसाइडेड टू स्पेंड मोर टाइम विद योगिक प्रैक्टिस, एंड इट वाज अमेजिंग। लाइक मेरी मम्मी पापा हम सब अपना छत पे जाते थे, और क्योंकि उस टाइम पॉल्यूशन कुछ नहीं था और पूरा माहौल बहुत बढ़िया बन चुका था नेचर वाइज देखा जाए तो। मतलब आई स्पेंड वेरी गुड टाइम वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, बुक्स पढ़ना, खाना बनाना, योगा करना।
तो वहाँ पे हमने अपना जो माइंडसेट है वो शिफ्ट किया। दो वी कांट इग्नोर कि हाँ प्रॉब्लम चल रही है बाहर, लेकिन वही चीज़ कि नथिंग इज परमानेंट। वो जो प्रॉब्लम आई है वो परमानेंट नहीं रहेगी, एक ना एक दिन उसको भी जाना ही होगा। हाँ, सुख और दुख तो जीवन का पार्ट है। तो अब दुख के समय में स्पेशली जब कंडीशन आर दैट मच ऑफ एक्सट्रीम विच इज ऑल्सो गिविंग यू लेसन, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ पीपल आर नॉट मच कंसर्न अबाउट देयर इम्यूनिटी और हेल्थ। उनको लगता है कि काढ़ा पीकर इम्यूनिटी आएगी एंड उनको लगता है फिर से अगर कोविड आ गया तो हम उस टाइम सोचेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। तो इट्स लाइक ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको हर दिन अपने ऊपर काम करना चाहिए और दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ। इट्स नॉट लाइक वन डे मतलब कुछ भी हुआ तो आप प्रिपेयर हो गए। आपको कहीं ना कहीं अपने आप प्रिपरेशन करते रहने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड बी ग्रेटफुल कि लाइक वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन आवर लाइफ हु आर कीप रिमाइंडिंग अस दीज थिंग्स कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है और कुछ प्रॉब्लम है जो यूनिवर्सल है सबके लिए। लाइक अगर भूकंप आया तो भैया सबके लिए आया, वो मेरे घर पे नहीं सबके लिए आया, लेकिन एक दूसरे का साथ देना उस समय दैट इज इम्पोर्टेंट। या थैंक यू सो मच। सो ट्रू सर। यस, रिचा जी जैसे कह रही हैं, हमें आपका खाने बनाने का स्किल अब दिख रहा है। वंडरफुल डिशेस एवरी वीक एवरी डे बाय यू, along अरे with wonderful commentary. यार वो तो बस पता नहीं, इट वाज लाइक आई जस्ट ट्राइड इट और अच्छा निकल आया। मतलब आई एम सेइंग, मतलब जो मैं बनाता हूँ बहुत अच्छा बनाता हूँ सच में, कभी आइएगा। बट वो अचानक से आया, मतलब इट वाज नॉट समथिंग कि हाँ मैंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, बट आई जस्ट ट्राइड एंड इट केम आउट सो गुड। या थैंक यू। आई फील एक और चैनल खुल सकता है, कमल कुक्स करके। So, and yes, I would like to share and then we can wind up that these two chapters we can combine, like दोस्तों के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ व्हेन यू आर देयर। एंड जैसे ऋचा जी ने कहा कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो किसी भी सिचुएशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए, बट उस सिचुएशन में यू डेफिनेटली हैव योर क्लोज वंस एंड दैट एक्चुअली शील्ड्स यू, प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट पॉसिबल केस। तो किसी भी कैलामिटी में, कोविड में या कहीं, बस एक चीज़ ज़रूर रहती है कि हम हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है या हमारे जो क्लोज वंस हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, कोविड टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स थी, वी वर कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉल एवरी सिंगल डे एंड वी डिडंट मिस इवन वन डे। वो हमारा एक डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी होता था। एंड सिमिलरली टीबीएफ। सो दोनों सिचुएशंस में शेयरिंग हैप्पीनेस एज वेल एंड शेयरिंग गुड बैड थिंग्स एज वेल विद द टीबीएफ मेंबर्स एक्चुअली सूट्स अस। तो लव्ड वंस इसीलिए भी हैं कि हम किसी बैड सिचुएशन में उनके साथ वी कुड लीन ऑन टू देम। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड एंड थैंक यू सो मच रिचा जी, एंड थैंक यू सो मच आदित्य जीजू टू जॉइन हियर। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। यस, beautiful words by him, everyone should read. And yes, with that we'll wind up the session. एक बार आदित्य जी से पूछ लो उनको कैसा लगा सेशन। रिचा उन्होंने आप म्यूट पर है। yes, उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है। मैंने बहुत प्रेम से उन्हें यहाँ इनवाइट किया था ये, और उन्होंने कमेंट्स में काफी एक्टिवली अपना बताया शेयर, और उनको सुनने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा आपको इन पर्सन, ठीक है? तो वो हम बात के लिए ड्यू रखते हैं, बट हाँ आई विल लेट्स ऑल वी कैन रीड दिस सेशन एंड वी कैन रैप, ठीक है? All right, so with that we'll wind up the session. Today we don't have Gita session, so let's meet tomorrow for reading at 8:30 p.m. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much Richa. Bye bye everyone.